Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we are going to talk about the structure and full explanation of female reproductive system. This is all about matter of class 12 biology chapter 2, and in this chapter earlier we have discussed about the male reproductive system. All about matter of male reproductive system was over, and detail about microsporogenesis and structure of pollen grains, 2-cell and 3-cell structure was over in previous video lecture. In this video we are now going to talk about the female reproductive system of flowering plants. The female reproductive system in flowering plants. इनकी जगह ऑफ कर दो, ऑफ flowering plants. Keep in mind, female reproductive system of flowering plants. And you are probably known it about. Tell me, what are the other name of female reproductive system of flowering plants? Write it in your comment box. जल्दी कमेंट करके बताइए भाई. गाइनोसियम, वेरी गुड. शगुन यादव, गाइनोसियम. इट इज ऑफन नोन एज द गाइनोसियम. इट इज नोन एज द पिस्टिल. इट इज नोन एज द कार्पेल. So many name of the female reproductive system. It is known as the gynoecium, pistil and carpel. So it may be asked in the examination, structure of gynoecium, structure of pistil, structure of carpel. Listen carefully. Gynoecium, ठीक है, Gynoe, Gynoe, gynoecium, pistil and carpel. Listen. अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं. पहले लिसन, स्ट्रक्चर. सबसे पहले स्ट्रक्चर की मैं बात कर दूं. स्ट्रक्चर, the most common structure, you are well familiar with the structure of female reproductive system is, listen carefully, first of all you need to draw the stigma. This one will be the style and this is the ovary. These are the common structure of the female reproductive system. And later there will be the thalamus, which is not a part of female reproductive system. This is the common structure of female reproductive system. I hope you can label it. This will be the stigma. Stigma. Listen carefully. Can anybody tell me the function of stigma? Can anybody tell me the function of stigma? Your point 1 will be stigma. Function of stigma. Help to trap the pollen grain. It collects pollen grain. Very good, very good. Listen carefully. You have to explain the structure, location and function of stigma. Listen carefully. You are all are advised to write the point 1 stigma. Keep in mind. And stigma is the typical part of gynoecium. It is typical part of gynoecium that is sticky in nature and allowed to stick the pollen grain after landing during the pollination. This will be your homework. Next one is style. Second point will be style. Style के बारे में क्या लिखेंगे? Listen. Style is the tubular part of gynoecium. Style is the tubular part of gynoecium through which pollen tube reach to the ovary. Gynoecium is the tubular part. ये अंदर से, ये बाहर से ऐसे दिखता है लेकिन ये ट्यूब लाइक होता है, ऐसे होता है.
ठीक है, जैसे ट्यूब होता है वैसे होता है, जिसके थ्रू कोई भी चीज पास कर सकती है, एक साइड से दूसरे साइड में निकल सकती है। ठीक है, सो इट इज हॉलो स्ट्रक्चर, द गाइनोसियम इज हॉलो स्ट्रक्चर, and that is your homework to write about other location and function. It is located between the stigma and ovary. हो गया स्टाइल के बारे में? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, ओवरी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द बेसल स्वॉलन पार्ट लिखेंगे, द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ गाइनोसियम, फूले हुए पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये क्या है? ओवरी। दिस शुड बी योर होमवर्क, राइट अबाउट द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। लेटर आई विल डिस्क्राइब मोर डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हो गया है तो हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, लिसन केयरफुली। सो stigma, style and ovary collectively known as pistil or carpel. Pistil or carpel. Listen carefully. Some flower consist only carpel or pistil. No male reproductive system. Can anybody tell me the specific name of that flower? Flower that consists only pistil or carpel. Can anybody tell me the name of specific name of that flower in which no male reproductive system found, only pistil found? Tell me. चलो बोलो। यूनिसेक्सुअल नहीं, हिबिस्कस नहीं, दोनों का रॉन्ग है। स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट फ्लावर, pistillate flower. Listen carefully. Flower that consists only pistil called pistillate flower. ये लिख लेना पहला पॉइंट। फ्लावर दैट कंसिस्ट ओनली पिस्टिल कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर, कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। हो गया? वेरी गुड, लिसन केयरफुली। एंड एग्जाम्पल ऑफ पिस्टिलेट फ्लावर, pumpkin, cucumber and all members of cucurbitaceae family। ठीक है, बातें क्लियर हो गई? पपाया भी उसी के सीरीज में आता है। हो गया हो तो बताओ, आगे बढ़े। वेरी गुड, लिसन केयरफुली। these carpels are actually single in number or many in number. If only one carpel they are present in the female reproductive system or in the flower, if only one carpel present, then what will be the name of that flower or that carpel? If only one carpel present, what special name are said to be that flower or that carpel? सब लोग बताओ। केवल अगर अकेले एक ही, वेरी गुड शगुन यादव, वेरी गुड। मोनोकार्पिलरी नहीं, स्टेमिनेट, अस्मिता गलत है भाई, उल्टा पुल्टा लिखते हो तुम लोग। मोनोकार्पिलरी क्या होगा? मोनोकार्पिलरी। लिसन केयरफुली। सो मोनोकार्पिलरी इज द कंडीशन when only single carpels are present in the flower। सब लोग हो गया? लिख लिए कॉपी में? आगे बढ़े। if only single carpels are present then there will be monocarpellary like this। ये सिंगल कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट। if many carpels present then what is special name of that carpel? बहुत सारे कार्पल है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पेलरी नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे उसको? मल्टी कार्पेलरी। लिख लो कॉपी में, मल्टी कार्पेलरी।
और ये एग्जाम में आता है. What do you mean by monocarpillary? What do you mean by multicarpillary? That is the characteristics of gynoecium. So monocarpillary gynoecium are those gynoecium in which only single carpels are present, and monocarpillary are those carpillary in which multicarpillary क्या होगा? In which many carpels are present, and monocarpillary in which single carpels are present. हो जाए तो बताना. हो गया. चलो आगे आते हैं. नेक्स्ट, बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट होंगे तो वो कार्पल या तो आपस में फ्यूज होंगे या फिर आपस में फ्री होंगे. मींस इफ दे ऑल आर फ्यूज्ड, इट मे बी दे ऑल आर फ्यूज्ड और दे ऑल आर फ्री. अगर वो ढेर सारे कार्पल है, ठीक है, और सब के सब फ्यूज है या फ्री है, तो उसके अलग अलग नाम हो जाएंगे. ध्यान से सब लोग सुनेंगे. इफ मैनी कार्पल्स आर प्रेजेंट बट दे ऑल आर फ्री, देन दे कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस. वेरी गुड मधु शर्मा. दे ऑल आर कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस. And can anybody tell me, if many carpels are present and they all are fused, then what they called? चलो बताओ तो थोड़ा. Very good मधु शर्मा. If many carpels are present, they all are fused, then they called multicarpillary syncarpus. multicarpillary syncarpus. multicarpillary syncarpus. कीप इन माइंड. अच्छा, इसको मिटा दूं मैं. इसको मैं मिटा रहा हूं. चलो ध्यान से सब लोग सुने. एग्जाम में आता है आपके एग्जाम्पल करके, नेम द मल्टीकार्पिलरी syncarpus और एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस. तो लिख लो कॉपी में, मल्टीकार्पिलरी syncarpus पैपेवर सोमेनिफेरम, पॉपी प्लांट. ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम. इसी को क्या बोलते हैं? पॉपी. इसको ओपियम भी बोलते हैं, ओपियम. ठीक है, ये मल्टीकार्पिलरी syncarpus होता है. और एपोकार्पस क्या होता है? मल्टीकार्पिलरी मिकेलिया. और डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 25 एनसीईआरटी पे इसका डायग्राम मिल जाएगा आपको. ठीक है, उसी में आपको पेज नंबर 25 में इसका डायग्राम मिल जाएगा. मैं दिखा भी दे रहा हूं सब लोगों को. ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोगों को लिख लेना है कॉपी में. ये वाला जो डायग्राम है ये एपोकार्पस, ये मल्टीकार्पिलरी syncarpus का है, और ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस का है. यही मिकेलिया का है. ये वाला डायग्राम मिकेलिया का है. ये वाला डायग्राम क्या है? ये वाला डायग्राम क्या है? वो स्पेशल जो है syncarpus का. ये दोनों डायग्राम आपको बना लेने हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर, ध्यान से सब लोग सुनेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर में सिर्फ ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे, बाकी स्टिग्मा और स्टाइल में कुछ होता नहीं. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा स्पेशल. और ये है ओवरी. दिख रहा है सबको? दिख रहा है? बताओ तो जल्दी थोड़ा बहुत. हाँ, हैंड रेज करके बताओ सब लोग. वेरी गुड. चलो आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर दे रहे हैं. लिसन, इसमें एक बड़ा सा चैम्बर होता है ऐसे. इसमें एक बड़ा सा चैम्बर होगा इस तरह से, और इस तरह से एक ओव्यूल होगा. ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या है?
ओव्यूल है, ठीक। तो ये क्या है, वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी, और ये क्या है, लॉक्यूल, ये क्या है, लॉक्यूल, यानी कि जो चैम्बर है, ठीक है, चैम्बर, ये ओवेरियन चैम्बर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉक्यूल। और ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसको और भी नाम से पुकारा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ध्यान देना है। लेटर इट बिकम सीड, और इसी के अंदर मेगा स्पोर और मेगा गैमीट्स जनरेट होता है, यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट ओव्यूल के अंदर जनरेट होता है, एग्जाम में पूछता है। तो ये ओव्यूल हो गया, वॉल ऑफ ओवरी हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। वॉल ऑफ ओवरी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्प। ये बाद में फ्रूट वॉल बनाता है, और इसके चैम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉक्यूल, ठीक है। इंटरनल जो कैविटी दिख रही है वो चैम्बर है, उसको लॉक्यूल बोलते हैं। और जिससे वो ओवरी से कनेक्ट रहता है ओव्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, एक एक करके सबके बारे में मैं बता रहा हूं। अभी पहला करो, नोट कर लो कॉपी में, सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। हो जाए तो बताना। चलो वेरी गुड। अब आते हैं हेड येलो कॉपी में, ओवरी सर क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका वीडियो आयुषी अपलोड कर देंगे, घबराओ मत, इसका वीडियो मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। वॉल ऑफ ओवरी, इसको आप लोगों को पहला हेडिंग डालना है, वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, इट एक्सटर्नली प्रोटेक्ट द ओवरी, लेटर फॉर्म फ्रूट। इट एक्सटर्नली प्रोटेक्ट ओवरी, लेटर फॉर्म फ्रूट। हो जाए तो बताना। हो गया, चलो आते हैं। देखो अभी 10 मिनट के बाद ये इंस्ट्रक्शन मिला है, 10 मिनट के बाद अभी ये कट जाएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के बाद ये कट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखें, तो ये क्या है, वॉल ऑफ ओवरी है, इसके बारे में हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, लिखो कॉपी में, लॉक्यूल। ये वाला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, लिखो कॉपी में लॉक्यूल। हो जाए तो बताना, हेडिंग हैंड रेज करके बताना सबको, लॉक्यूल। चलो, लॉक्यूल क्या होता है, सब लोग लिखेंगे, इट इज इंटरनल चैम्बर इन विच ओव्यूल लोकेटेड। इट इज इंटरनल चैम्बर ऑफ ओवरी इन विच ओव्यूल लोकेटेड। इट इज इंटरनल चैम्बर इन विच ओव्यूल लोकेटेड। हो जाए तो बताना। निहारिका चौरसिया, हैंड डाउन भी किया जाता है ना, हैंड डाउन भी वहीं से होता है, हैंड डाउन कर लो। चलो हो गया लॉक्यूल। अब आ जाओ सीधे लिखो ओव्यूल। इट इज मेगा स्पोरेंजियम, राइट डाउन, इट इज मेगा स्पोरेंजियम। हो गया, इट इज मेगा स्पोरेंजियम, मेगा sporangium. Listen carefully. It is mega sporangium. Now, the next point related to the ovary, the ovule. Listen carefully. Ovule later develop into seed. It later develop into seed. Listen. It later develop into seed. Third point. It allow to growth of mega spores and gametophytes. It allow to grow the megaspore and female gametophyte. Female gametophyte. Listen carefully. The female gametophyte is developed in which part of gynoecium? एग्जाम में आता है,
female gametophyte or mega gametophyte develop in which part of gynoecium? Tell me. In which part of gynoecium do the female gametophyte develop? तो क्या लिखेंगे? नहीं 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 शगुन यादव, ओवरी में नहीं, ओवरी में नहीं। मधु ठीक है, वेरी गुड। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप इन ओव्यूल, वर्तिका, श्वेता कुमारी, वेरी गुड। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप इन ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एंजियम वर्ड तब लगता है जब पाउच लाइक स्ट्रक्चर की बात होती है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच द मेल गैमेटोफाइट डेवलप, मेगास्पोरेंजियम in which the female gametophyte develop. Other name of megasporangium is ovule. So where do the mega gametophyte or the female gametophyte develop? Inside the megasporangium, inside the ovule. क्लियर हो गया बातें? बात क्लियर हो गई? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में लिख लो कॉपी में। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा हेल्प टू कनेक्ट ओव्यूल टू द ओवरी वॉल। एग्जाम में आता है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, दिस हेल्प टू कनेक्ट ओव्यूल टू द ओवरी वॉल। देखो ह्यूमन बीइंग में जैसे यूटरस का काम है, जो काम जो है यूटरस का, वही काम ओवरी वॉल ऑफ ओवरी का है, ठीक है, ओवरी के वाल का। जैसे यूटरस में जो एंडोमेट्रियम वाल होता है, इसमें ओवरी वाल होता है, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा होता है तो एम्ब्रियो को कनेक्ट करके रखता है, उसमें भी वही काम करता है, एम्ब्रियो को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो लिख लेना कॉपी में सब लोग। प्लेसेंटा हो गया, हो जाए तो बताना, वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट लिखो कॉपी में। टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओव्यूल। Plants on the basis of number of ovule. Plants on the basis of number of ovule. Number of ovule. बहुत सारे ओवरी ऐसे होते हैं, ओवरी है जिसमें ढेर सारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैनी ओव्यूल प्रेजेंट, मैनी ovule present, many ovule present, and some plants are only one ovule present, only one ovule present. Listen carefully. Some plants ovary consist many ovule and some plants ovary consist single ovule. Tell me the specific name if plants consist many ovule and some plants consist single ovule. क्या नाम होगा स्पेशल उसका, जिसमें एक ओव्यूल प्रेजेंट हो या ढेर सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो? चलो बताओ तो जल्दी उसको थोड़ा। हो जाए तो बताना। द प्लांट कंसिस्ट मैनी ओव्यूल एंड द प्लांट कंसिस्ट सिंगल ओव्यूल। लिख लो कॉपी में। मल्टी ओव्यूलर नहीं, कार्पिलरी हर जगह थोड़ा लगेगा। हाँ, मल्टी ओव्यूलर एंड मोनो ओव्यूलर। लिख लो कॉपी में। देयर विल बी द मल्टी ओव्यूलर, मल्टी ओव्यूलर, एंड दिस विल बी द मोनो ओव्यूलर, मोनो ओव्यूलर। 11th में मैंने लॉक्यूलर के बारे में बताया था। If many locule, then multilocular. If single locule, then unilocular. Similarly, the uniovular or monoovular and multiovular, that will be the specific term used for the number of ovule. It should be in your copy. Listen carefully. ठीक है। और प्लेसेंटा कैसे कनेक्ट होता है, इसके बेस पे प्लेसेंटेशन आपको 11th में बताया गया था, ठीक है। There are so many types of placentation, axial placentation, precentral placentation, ठीक है, basal placentation. That was the part of 11th. That is not part of class 12. But this one will be your part. The number of ovule, and on that basis the specific terms and example. Now back to the example. तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लांट मल्टी ओव्यूलर है कि यूनी ओव्यूलर है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे।
प्लांट्स अगर मल्टी ओव्यूलर है, ठीक है, प्लांट्स अगर मल्टी ओव्यूलर है तो उसमें ढेर सारे सीड बनेंगे। अगर प्लांट यूनी ओव्यूलर है तो वो क्या है, उसमें एक ही सीड बनेगा। तो हमको ये बताओ एक एग्जांपल जो मल्टी ओव्यूलर हो, प्लांट्स दैट आर मल्टी ओव्यूलर, टाइप करके बताओ तो सब लोग, प्लांट्स दैट आर मल्टी ओव्यूलर, चलो टाइप करके बताओ तो मुझे। टोमेटो, पपाया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको लिख लेना कॉपी में, प्लांट्स दैट आर मल्टी ओव्यूलर, टोमेटो, पपाया, ठीक है। इसके अलावा ऑर्किड, ऑर्किड सिलेबस में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। टोमेटो, पपाया, गुआवा, वेरी गुड, ये सब मल्टी ओव्यूलर है। और यूनी ओव्यूलर की मैं बात कर दूं, सिंगल सीडेड प्लांट, तो क्या हो जाएगा, मैंगो, ऐसा प्लांट जिसमें एक ही सीड हो, मैंगो, वेरी गुड, मैंगो, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा पैडी, वीट, लिख लो कॉपी में सब लोग। अब आते हैं नेक्स्ट, अब लिखो कॉपी में, चेरी, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।